Hello students, welcome to the English class of StudyGest. Today we will be looking into the practice sets based on the 10th chapter that we have discussed in the previous classes. But before going into that, I would like to remind you of the ways in which you can connect with us so that you can gain more information and study materials. Subscribe to our YouTube channel, like us on Facebook, join our Telegram channel, follow us on Instagram and join our WhatsApp community using the number that is given here. And for further information, you can also log into the website www.studygest.in. As you can see here, our YouTube channel looks like this. Do like, share and subscribe our videos for more materials. And our Facebook page looks like this. Like us on Facebook. Now let us proceed with the practice sets. Now I have compiled here certain sentences which forms the error correction part of your exam portion. Now there are many sentences in which the tense is normally used in terms of error detection. So when a question comes, students normally fail to recognize the difference in the tense because it can be quite complicated, it can be quite confusing at times. So in order to simplify it, we need to practice it. Let us look at the first example here. Air pollution caused by industrial effluents has been studied for years, but only recently has the harmful effects of noise pollution become known. Now, let us look at this sentence. If you don't understand it, don't panic. Just look at the sentence and then read it again once, twice. Just read it. And you will, by the third time you will reading it, you might have known the answer. So what is it said here? Look at part by part. Air pollution caused by industrial effluents has been studied for years, but only recently has the harmful effects of noise pollution become known. Now, what can be the problem here, or is it really any problem here? How can we know? If we look at the sentences as it is divided into parts, we will see this in the first sentence here, first part of the sentence. Air pollution caused by industrial effluents has been studied. That means air pollution के साथ यहाँ पे has been को add किया गया है. ठीक है, हम लोग देखेंगे air pollution के साथ has been को add किया गया है. तो it is okay because pollution is uncountable. तो इसीलिए इसके साथ हम लोग has been यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर हम लोग सेकेंड पार्ट देखें, for years but only recently has the harmful effects of noise pollution become known. यहाँ पे harmful effects जो है इसके साथ has को add किया गया है. अब अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है हार्मफुल इफेक्ट्स यहाँ पे दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस में. यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट्स जो टर्म है वो प्लूरल टर्म है. ये इफेक्ट्स जो है दिस इज अ प्लूरल टर्म. सो अगर प्लूरल होता है तो हैज तो नहीं लगता है. ऑलवेज वी नो दैट हैज इज ओनली यूज फॉर सिंगुलर टर्म्स. सो प्लूरल कहाँ पे हो? प्लूरल अगर होता है तो क्या यूज होगा? हैव. तो यहां पे क्या होगा? हैव. But only recently have the harmful effects of noise pollution become known. पूरा एक बार देख लेते हैं. Air pollution caused by industrial effluents has been studied for years, but only recently have the harmful effects of noise pollution become known. Next देखते हैं. The judge asked the lady if the bag she had lost contained 10,000 rupees. Now, take it part by part. The judge asked the lady.
ये पार्ट ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, इफ द बैग शी हैड लॉस्ट, यहां तक भी ठीक है, क्योंकि अगर हम इस पार्ट के साथ इस पार्ट को जोड़े तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सिंपल पास्ट में लिखा गया है। ठीक है, सिंपल पास्ट में ये लाइन लिखा गया है। लेकिन अगर हम थर्ड पार्ट को देखें तो हम वी कैन अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे लिखा गया है कंटेन 10,000 रुपीज। तो अगर हम इस पार्ट को इस बाकी के पार्ट से ऐड करना चाहे तो विल दैट एड अप? थिंक यूजिंग योर लॉजिक कि ये क्या काम करेगा? ये नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो सेंटेंस है यहाँ तक A plus B is written in simple past, तो बाकी का जो सेंटेंस है वो भी सिंपल पास्ट में होगा। दैट मीन्स ये जो कंटेन है, ये जो वर्ब है V1 है, ये क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। दैट मीन्स कंटेन जो वर्ड है यहाँ पे वो हो जाएगा कंटेन्ड। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं पूरा सेंटेंस को। द जज आस्क्ड द लेडी इफ द बैग शी हैड लॉस्ट कंटेन्ड 10,000 रुपीज। तो एरर कहां पे था? सी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग बजट डिस्कशंस। यहां भी हम लोग देखेंगे, ये एक बड़ा सेंटेंस है तो हम लोग इसको भी पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड, यहां पे कंसिडर्ड के आगे वॉज जो है ये गलत यूज है। वॉज कभी भी V3 के पहले नहीं लगता है, तो ये जो रूल है मतलब V3 के आगे कभी भी वॉज वेयर ये यूज नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये जो फर्स्ट पार्ट है वो ही गलत है। तो अगर हम लोग वॉज को ओमिट कर दे, हटा दे, तो सेंटेंस क्या होगा? द मिनिस्ट्री कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग बजट डिस्कशंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हैविंग वर्क इन बोथ public and private sector banks, she is the most suitable person to take over the post of the chairman. Again, as I said कि जब भी कोई सेंटेंस में अगर आपको कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, read it once or twice, okay? And read it part by part. So here, look at this sentence, having work. इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं, बाकी का पार्ट देखते हैं। In both public and private sector banks, she is the most suitable person to take over the post of the chairman. मतलब she जो एक women के बारे में बोला जा रहा है, एक लेडी के बारे में बोला जा रहा है। she has worked, ठीक है, मतलब वो पास्ट में करती थी, पास्ट में करती थी, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स करती थी, कर चुकी है। सो दैट्स व्हाई शी इज द मोस्ट सुटेबल पर्सन टू वर्क एज द चेयरमैन। तो हैविंग वर्क यहाँ पे होगा? नहीं होगा, क्योंकि वर्क तो प्रेजेंट में होता है। वर्क जो है ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, मतलब कि ये V1 है, इसको हम लोगों को V3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। That is worked. So क्या होगा यहाँ पे? Having worked in both public and private sector banks, she is the most suitable person to take over the post of chairman. Next example देखते हैं। Rohit started a very small business 2 years ago, but it grew very fast. As the country is experiencing a boom at that time. तो क्या हुआ? रोहित ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था 2 years ago, 2 साल पहले उसने स्टार्ट किया था। मतलब हम लोगों को पता चल गया
कि ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है. बट इट ग्रू वेरी फास्ट, मतलब कंटिन्यूअस भी था. तो पास्ट में था, पास्ट कंटिन्यूअस में था. फिर क्या बोला जा रहा है, एज द कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग अ बूम एट दैट टाइम. मतलब पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है. अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो ये इज जो है यहाँ पे ये गलत होगा. क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस में है. पास्ट में कभी भी इज यूज नहीं होता है, पास्ट में was यूज होता है. सिंपल. Rohit started a very small business 2 years ago, but it grew very fast as the country was experiencing a boom at that time. मतलब country तभी flourish कर रहा था. boom मतलब flourish कर रहा था. तो तभी के टाइम में past को रेफर किया जा रहा है. That's why is का यूज incorrect है, was होगा यहाँ पे. Next देखते हैं. Keeping in mind the current market conditions, it has better for us to invest in the infrastructure structure. तो यहाँ पे जो है keeping in mind the current market conditions, it has better, it has कभी भी नहीं होता है. has, have, ये it has been better for us हो सकता है या फिर it is better हो सकता है. अब क्योंकि पूरा सेंटेंस जो है, बाकी का पार्ट जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इट हैज नहीं, इट इज बेटर फॉर अस टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. नेक्स्ट देख लेते हैं जो लास्ट एग्जाम्पल है. सिंस शिवानी हैड लिव्ड देयर फॉर मेनी ईयर्स, द विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल, talked to her about all her problems. Okay, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है. फर्स्ट पार्ट में since शिवानी had lived there for many years, मतलब कि वो एक जगह पे बहुत ईयर से रहती थी. The villagers were comfortable. The villagers were comfortable in talking with her and talked to her about all their problems. सो यहाँ पे अगर हम लोग कंटिन्यूटी वाइज देखें सेंटेंस को तो हम लोगों को पता चलेगा कि सिंस शिवानी हैड लिव्ड देयर फॉर मेनी इयर्स, द विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू हर अबाउट ऑल देयर प्रॉब्लम्स. टॉकिंग क्यों हुआ? क्योंकि टॉक्ड जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. टॉक इटसेल्फ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो अगर हम लोग बोले कि जो विलेजर्स थे वो शिवानी से बात करते थे, तो बात करना भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में आता है. इसीलिए हम लोग टॉक को आईएनजी ऐड कर देंगे, वी के साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, सिंस शिवानी हैड लिव्ड देयर फॉर मेनी इयर्स, द विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल talking to her about all their problems. With this, I would like to conclude my chapter on tenses. Thank you very much for joining me, and please like, share and subscribe to our channel, and for more videos subscribe to our YouTube channel. Thank you.